Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete digestion in oral cavity. So let's move to the light board. So dear students, we were discussing digestion in oral cavity. And we have discussed the steps, the two main steps which has been discussed. The first step which was discussed, that was the selection of food. The second step, that was grinding or mastication. Now the third and the fourth steps, they occur simultaneously at a time. एक दूसरे के साथ ये coordinate करके होते हैं. Means that is, this one has been done, this one has been done. Now, lubrication and digestion. So the last two functions of oral cavity. So that is very interesting. And these are the major functions of oral cavity. Remember one thing, according to MCQ's point of view. So these means lubrication and digestion. These are the main functions of oral cavity. अच्छा dear students, याद रखना है, oral cavity, it is also known as mouth cavity. It is also known as buccal cavity. Clear? तो ये किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है. तो ये आपने इनके alternate names, इनका synonyms ज़हन में रखने हैं. So the major function of, so हमने बात की थी oral cavity के बहुत सारे functions हैं, but उसमें से हमने चार जो है most obvious function उनकी वो बात की थी. The first was the selection of the food, second was the grinding and mastication, now the third and fourth, lubrication and digestion. So these are the main or major functions of oral cavity. ये MCQ's point of view से याद रखना है. Clear? अगर आपसे मेन या फिर मेजर फंक्शन की बात की जाएगी तो आपने इसको मार्क करना है, lubrication and digestion. So these are accomplished by the help of salivary glands, by the help of salivary glands. इसके introductory lecture में बताया dear students आपको, we have got 3 pairs of salivary glands, means total 6 in number, or if you talk in terms of pairs, so we have got 3 pairs. Clear? So salivary glands produce saliva. Yes. So today I'll try my level best to let you explain and let you understand what are the salivary glands and what is its secretion, saliva, very important. So dear students, first of all, the salivary glands So Allah has provided us with, there are 3 pairs, that is also an MCQ, of salivary glands
are present. Number one is parotid gland. So dear students, parotid gland, अभी मैं डायग्राम के जरिए भी इसको लोकेट करने की कोशिश करूंगा, बट मैं आपको पहले लाइवली बताऊं तो यहाँ पर ये मौजूद हैं, ये हमारे ईयर के बिल्कुल फ्रंट पे, यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं पैरोटिड ग्लैंड्स. वेयर इज देयर लोकेशन? देयर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, हमारे दोनों कानों के बिल्कुल सामने वाली, इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर्स, present in front of our ears. And remember one thing, dear students, also from anti-test point of view or MCAT point of view, they are the largest glands, largest salivary. ये आपसे एंटी-टेस्ट में पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आमतौर पर ट्रिकी क्वेश्चन है. तो among the parotid, among the submandibular and sublingual gland, salivary glands, which one of the फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? तो अगर साइज के एतबार से देखा जाए तो सबसे बड़ा यहां पर अभी मैं शो भी करूंगा. क्लियर? सो व्हाट इज इट्स फंक्शन? दैट इज इट प्रोड्यूसेस सलाइवा प्लस इमाइलेज, जिसको हम सलाइवरी इमाइलेज भी कहते हैं. क्लियर? और इसका फंक्शन आगे चलकर मैं बताऊंगा, क्लेरिफाई करूंगा आपको. तो सलाइवा प्लस एमाइलेज, इसका सिर्फ फंक्शन ये है कि ये एमाइलेज जो है, इसके साथ जो एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है. तो ये साथ में रिलीज करेंगे पैरोटिड ग्लैंड्स. अभी सलाइवा की आपको कंपोजिशन बताऊंगा तो उसके हवाले से मजीद आपको ये बेहतर लगेगा. सो दिस इज व्हाट अबाउट द पैरोटिड ग्लैंड्स. नंबर 2, द सेकेंड वन इज that are submandibular glands. इनको समटाइम्स सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है, कुछ जगहों पे सब मैक्सिलरी भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारी बुक में इसको सब मैंडिबुलर लिखा हुआ है. इट्स ओके. तो इसके नाम पे जरा आपने गौर करना है. सब मीन्स बिलो. जहां पर भी वर्ड आता है सब, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसका मतलब होता है बिलो. क्लियर? सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर मीन्स मैंडिबल से रिलेटेड है. सो व्हाट इज मैंडिबल? ये हमारा जो लोअर जॉ होता है, ये नीचे वाला जबड़ा, जो मूवेबल जॉ है हमारे दो जॉस है, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ. जो लोअर जॉ है वो मूवेबल है. तो लोअर जॉ को हम इन साइंटिफिक, इन बायोलॉजिकल टर्म्स, इन मेडिकल टर्म्स वी से इट्स नेम इज मैंडिबल. तो मैंडिबल के नीचे यहाँ पर सब मैंडिबल, ये मैंडिबल के नीचे यहाँ पर सब मैंडिबुलर. सो इट लाइज it is present below or behind the mandible, which is we call it as lower jaw. Clear? I'm writing its function, their functions separately in the pink colors. So सलाइवा तो है ही, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सलाइवा के साथ ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैंडिबुलर. इट प्रोड्यूसेस सलाइवा प्लस एमाइलेज प्लस इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस म्यूकस. It also produces mucus. Clear? Now, the third one, the third gland, that is sublingual salivary gland. तो डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से सबका मतलब बिलो, यहाँ पर नीचे, और लिंगुअल लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज मतलब जुबान, तो वहां से है. ठीक है, तो जुबान के बिल्कुल नीचे. सो इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग, हमारे जुबान के नीचे मौजूद हैं
कहाँ पर मौजूद है उसको मैं लोकेशन भी बताता हूँ और इसका फंक्शन। तो सैलाइवरी ग्लैंड सैलावा तो सेक्रीट करना ही है, बट प्लस म्यूकस ओनली। क्लियर? तो याद रखिएगा, सबलिंगुअल सिर्फ म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, पैरोटिड सिर्फ एमाइलेज, यानी कि सलाइवा के अलावा ये सिर्फ एमाइलेज, ये सिर्फ म्यूकस और सब मैंडिबुलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीजें सेक्रेट कर रहा है। क्लियर? सो दीज, अब आ जाए इसके ऊपर लोकेशन के ऊपर। नाउ आई विल ट्राई टू शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। Now here, in front of here, is large gland, this one. इसकी duct है, and this one is our oral cavity. यहाँ पर मौजूद है हमारे teeth set, ये sides पे दिखा रहा हूँ. Okay, these are the lips, and these are the teeth. ये इसकी duct. And here is our mandible. और यहाँ पर मौजूद तो है मैंडिबल के बिल्कुल नीचे, यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर, over here, these both are interconnected, and these are the ducts. Now I'm going to label it. So this one is parotid gland. As you can see in the diagram, its size is larger as compared to the both of others. So this is parotid gland, and that is the duct, salivary duct, जिसके ज़रिए saliva pour कर रहे हैं. This one is submandibular, and this one is sublingual, जुबान के नीचे. तो इनकी लोकेशन again you can see. So these are my ear, this is my ear. ईयर के बिल्कुल सामने यहाँ पर इतनी जगह के ऊपर होता है. दिस वन इज पैरोटिड, और यहाँ पर इस जगह ये मेरे में मैंडिबल, मैंडिबल के बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, दैट इज सब मैंडिबुलर, इसके नीचे. और आप मिरर के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े होके, ओपन योर माउथ एंड मूव योर टंग टू द अपर साइड. आप जुबान को ऊपर की तरफ मूव करेंगे लाइक दिस. तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जुबान के, जब हम ऐसे जुबान को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ये फ्रेनुलम होता है, और इसकी दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पर आकर इसकी डक्ट्स खोल रही होती हैं. दीज आर द डक्ट्स ऑफ सबलिंगुअल. तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व, जब आप ऐसे करके देखेंगे, जुबान को ऊपर उठाएंगे शीशे के सामने, तो आपको यहाँ से लिटरली सलाइवा निकलता हुआ नजर आएगा. आप इसके बाद देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व इट. क्लियर? सो these are the ducts of sublingual salivary gland. That is what I have shown, tried to show the tongue. Clear? So ये यहाँ तक clear हो गया. तो ये salivary glands, 3 pairs of salivary glands, 2 parotids, 2 submandibular, 2 sublingual. 2 means left and right, left and right. Clear? Now, next important thing, after salivary glands, these salivary glands produce saliva. Now I'm going towards saliva. So it has got 3 components. Remember one thing,
again according to anti-test point of view, also board point of view, and important MCQ, saliva has three main components. Three components. And what are they? And what are their functions? I will discuss in detail. So, as far as the three components are concerned, the first component is water and mucus. Clear? The second component is, that is sodium bicarbonate and other salts. And the third one is ptyalin, or which is also called as salivary amylase. ये इसका सेकेंड नेम है, या सिंपली हम इसको एमाइलेज भी कहते हैं. क्लियर? सो व्हाट आर नाउ देयर फंक्शंस? आई एम गोइंग टू डिस्कस इन देयर डिटेल्स. एज फार एज द वाटर एंड म्यूकस आर कंसर्न, वाटर और म्यूकस का फंक्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इन सलाइवा देयर फंक्शन इज टू lubricate and moisten the food so that it can be efficiently passed through the esophagus. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसोफेगस सिंपल एक मस्कुलर ट्यूब है, तो वो थोड़ा सा मतलब कि स्लिपरी होता है, लेकिन ज़्यादा स्लिपरी नहीं होता आम हालात में. तो वहाँ से स्लिप करके आसानी के साथ पोलस निकल जाए, उसको स्लिपरी बनाने के लिए म्यूकस और वाटर क्या करता है, उसको सॉफ्ट भी करता है और मॉइस्टन भी करता है और लुब्रिकेट भी कराता है. ठीक है? एंड सो इट फॉर्म्स अ स्लाइमी lump. Clear? Of food. So that are the functions of water and mucus. Now, so sodium bicarbonate especially and some other salts. Other salts कौन कौन से हो सकते हैं dear students इसमें? It contains calcium, it contains potassium, it contains magnesium. So these are some electrolytes or salts which are present within the saliva, but the major one is sodium bicarbonate. Clear? Sodium bicarbonate. So what is its function now? So dear students, sodium bicarbonate, first of all, it has got some antiseptic property. It has got antiseptic property. Antiseptic property means it kills the microbes in the food which we have selected. अगर उसके अंदर कोई जरासीम मौजूद हैं, कोई वायरस बैक्टीरिया, तो उसको यहाँ से उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट की उसको किल कर दी जाते हैं. नंबर 2, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द सेकेंड, the most important function of sodium bicarbonate is to stabilize the pH of food. Very important MCQ, dear students. कि इसका मेन काम क्या है? इस सोडियम बाइकार्बोनेट का मेजर, वैसे तो ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटीसेप्टिक के तौर पर सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शन को, जो कि माइक्रोब्स की वजह से हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है. एंटीसेप्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसा केमिकल
या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इसको प्रिवेंट करे, सेप्सिस को प्रिवेंट करे, यानी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीसेप्टिक के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे हम पायोडीन लगाते हैं जख्म के ऊपर ताकि मज़ीद जब चोट लगे तो उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो सके। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात आएगी, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम मेकिंग स्टारिक बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। Most important function is to stabilize the pH of food. उसकी फूड की pH को मेंटेन करना। यहाँ पर एक और चीज़ डियर स्टूडेंट बताते चलो, जहाँ तक pH की बात है, the pH of fresh saliva and the pH of stale saliva. Stale saliva एंड फ्रेश सलाइवा मतलब जैसे ही वो निकल रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, इट्स pH इज, फ्रेश सलाइवा pH इज इक्वल टू 8, मीन्स इट इज एल्कलाइन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे ही ये वो रिलीज होता है फ्रेश सलाइवा, उसकी उस वक्त pH 8 होती है, बट इट क्विकली लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, it quickly loses carbon dioxide, CO2, and it becomes, now the pH becomes 6, means acidic. Clear? तो ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, नाउ द थर्ड फंक्शन, द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज टाइलिन। याद रखिएगा, ये इसका नेम है सलाइवरी एमाइलेज का, या जिसको सिंपल एमाइलेज भी कहते हैं, उसका ये सेकंड नेम आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, टाइलिन। सो पी साइलेंट होता है आमतौर पर। सो टाइलिन, इट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम and dear students, it helps in the digestion of starch. It acts on starch to convert into maltose. Also, it acts on glycogen, starch and glycogen. So here is tylen or amylase. So it converts starch or glycogen into maltose. So here is the partial digestion of the carbohydrate. So that is the major function of this tylen. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और swallowing को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।